we and then we are going to start with one more method, that is public void thread start. So that name you can keep with anything. Okay, it is not needed like thread start only you have to give, because thread start is a method which is already available in the .NET framework. But here it is something different. We can keep any name, so that doesn't matter. Okay, so from this particular method, what I want to do is I just want to call this method which is given here like this. So what is the need of this? The need is nothing but as this is the static method, and I want to call this print hello from method from this thread start, uh, which we can see like a delegate kind of method. Okay, so we will come to know shortly. Then what I'm going to do is I will instantiate the parent thread dot name. So I will give some name to this my main thread, something like that. You just want to pass the name of this current thread. Okay, so every thread you can name with an exclusive identifier. So आप अपने हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करने के लिए नेम रख सकते हैं. So similarly, thread dot current thread dot name you can keep like this or with your own name. So anything you can take. Then what I want to do is I just want to create a. I just want to create a class example. Okay, so what? Let's take thread example. Okay, so thread example is equal to new thread example. Then I will instantiate a thread which is a new thread, and what I'm going to do is I just want to pass this thread start with this thread start method. Okay, so दोनों में confusion होने की जरूरत नहीं है. This is a thread that you can keep any name. Okay, so my thread start method. So something like that you can take, and this becomes what? My thread start method. Okay, only to understand, we have given that name. Then what we are doing is, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? Thread dot. So this particular thread is given with fork thread or new thread. Okay, so something like that you can keep, because this is a new thread. Okay, we have created a new thread by passing the method name of this my thread start method, and we have assigned some another name to this instance of this thread. Okay, so ये जो current thread का नाम है my main thread, which is your actual main thread. Okay, thread dot current thread name. Thread dot current thread क्या करता है? ये thread that is represented of the currently running thread. So जब भी आपके main method में प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके लोड करता है मेमोरी के अंदर, so कहीं ना कहीं एक थ्रेड को असाइन करता है. So the starting thread is your thread dot current thread that you can keep like anything. So we have given the name like main thread, and then what I'm doing is I'm creating one more method, one more thread here. So this is the second or new thread. So this is the new thread, and I have created a class instance of this. And what I'm doing is I just want to pass this method name into this thread start. So you can see this as a delegate. Okay, so ये अपना एक delegate है. So this is a delegate. So this delegate I am passing with a method, and then I am giving some alternative name to the fork thread. So this is the new thread, so that you can see as a fork thread. है ना, fork करने के बाद fork thread बनता है. So आप n number of threads आप बना सकते हैं depending on your operating system capacity. And finally console.readline just stop करके execute करने के लिए हम लिखेंगे. But before that I have to start this thread also. So instantiate करना एक चीज है, उसके बाद name assign भी कर सकते हैं, नहीं भी assign कर सकते हैं. So that depends on you. But you have to inevitably start this thread. जब तक आप उसको start नहीं करेंगे तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर थ्रेड को लॉन्च नहीं करेगा
एंड आपका जो प्रोग्राम दूसरे थ्रेड के ऊपर चलेगा नहीं. ओके, एंड देन आई विल कॉल दिस मेथड प्रिंट हेलो फ्रॉम थ्रेड. So only for some demonstration purpose. Okay, so let us see what happens now. When I am running this, yeah. So initially, what it is printing? It is printing this hello from thread, my main thread. So ये जो my main thread कहाँ से आ रहे हैं? वो आ रहा है यहाँ से. Okay, and that क्योंकि ये देखो इसमें डायरेक्टली हमने जो लॉन्चिंग थ्रेड को हमने कॉल किया है थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट नेम. सो दैट इज गिवन विद द नेम हियर. सो नेम के अंदर हमने उसको नाम दिया है, बट नाम आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, आपके ऊपर है. बट दिस पर्टिकुलर डेटा वॉट एवर वी हैव असाइंड we are getting in the response also. Okay, so that means it is getting executed from the launching thread. Okay, then इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा मेथड भी हमने लिया है माई थ्रेड स्टार्ट मेथड. एंड इसको हम क्या कर रहे हैं, थ्रेड माई थ्रेड स्टार्ट मेथड को हम डेलीगेट के थ्रू, सो दिस इज अ डेलीगेट मेथड. सो हम पास कर रहे हैं एज अ रेफरेंस एंड उसका थ्रेड को नाम दे रहे हैं फोर्क थ्रेड और न्यू थ्रेड. एंड दैट्स व्हाई नाउ इट इज प्रिंटिंग लाइक हेलो फ्रॉम थ्रेड. ये तो स्टैटिक है, ठीक है, ये दोनों के लिए कॉमन है, यहाँ तक कॉमन है. But it will take the second thread name, which is given with this value, which is given with this value. So got it? इसमें कोई डाउट है क्या? किसी को डाउट है क्या? Yes, got it. Yeah. So I will again once again. अगर आप ये नहीं करते हो तो स्टैटिक वॉइड मेन मेथड के अंदर जो भी आपका एप्लीकेशन चलता है सिंगल थ्रेड मॉडल में चलेगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि नॉर्मली हर एक एप्लीकेशन का, हर एक प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट का मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट नहीं रहता, सिंगल थ्रेड एनवायरनमेंट ही रहता है. जब तक आपको डिपेंडेंसीज नहीं है पैरेलल प्रोग्रामिंग का, जब तक आपको डिपेंडेंसीज नहीं है बैकग्राउंड प्रोसेस चलाने का, सो आपका ये जो करंट थ्रेड एग्जीक्यूशन मॉडल है दैट इज मोर देन सफिशिएंट. बिकॉज देखो ये जो कंप्यूटर है ना बहुत ही सुपर फास्ट है, आज की डेट में तो बहुत ही सुपर फास्ट चलते हैं. एंड वी आर रनिंग ए थ्रेड एंड विच कैन कंप्लीट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ नियरली 10,000 लाइन्स इन लेस देन ए सेकेंड. तो आज की डेट में क्या होता है कि एक सेकंड के अंदर आप 10,000 लाइंस का भी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं. सो नॉर्मली क्या होता है कि सिंगल थ्रेड इज मोर देन एनफ फॉर एनी काइंड ऑफ योर एप्लीकेशन अनलेस यू आर नॉट डूइंग सम हेवी बैकग्राउंड ऑपरेशंस, है ना. अब बहुत बड़े बड़े एल्गोरिथम्स को प्रोसेस कर रहे हैं, डेटा माइनिंग कर रहे हैं, या कुछ बैकग्राउंड प्रोसेस को चलाने, कंटिन्यूसली चलाना है. ओके, सो इन दोस केसेस ओनली यू हैव टू depend upon some parallel task running model. So parallel task running model जब तक आपको जरूरत नहीं है तो आपको थ्रेड की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दिस इज मोर देन एनफ. बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये सीक्वेंस वाइज चलेगा, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा. ऐसा नहीं कि 10-15 मिनट लगेगा, 10-15 मिनट कोई भी एप्लीकेशन में नहीं लगता. इट विल हार्डली टेक सम 2 to 5 सेकेंड या एट द मोस्ट 10 सेकेंड्स. सो 10 सेकंड्स की आज के डेट में बहुत ही ज्यादा डिले माना जाता है ना. 10 सेकंड्स तक यूजर वेट ही नहीं कर सकता. सो दैट्स व्हाई सम हेवी डिपेंडेंसीज आर देयर. यू कैन ऑफलोड दैट background process or some algorithm running feature into a separate thread. So ऐसा आपको parallel programming के features आपको मिल जाते हैं. Okay, so with this example we have seen, where is that? Yes, with this example we have seen आपका main thread का भी मेथड एग्जीक्यूट करके आउटपुट शो कर रहा है और आपका जो फोर्थ थ्रेड वाला भी एग्जीक्यूट करके शो कर रहा है. सो दैट मींस वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड ए न्यू थ्रेड टू स्टार्ट ए मेथड व्हिच यू हैव डिक्लेयर्ड लाइक दिस. दोनों में एक ही मेथड कॉल हो रहा है, दोनों में एक ही मेथड कॉल हो रहा है. ओनली थिंग इज करंट थ्रेड का हम एक्सेस कर रहे हैं. सो फर्स्ट टाइम करंट थ्रेड है माय मेन थ्रेड, सेकंड टाइम द करंट थ्रेड है फोर्थ थ्रेड. सो दैट इज व्हाट द डिफरेंस. इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो.
थोड़े धीरे धीरे No, so good. so we have uh, we have seen with this thread start. सब ये thread start क्या है? ये एक method threading के ऊपर इन्होंने एक static method दिया है, and you can see the definition also. This is a delegate. So ये delegate है करके आपको method को ऐसा pass करना पड़ता है. So irrespective of your whether this is a like parameter based argument based method है या नहीं है, so it doesn't depend. So as this is a delegate, because आपका delegates का concept अभी clear है, delegates के ऊपर हमने events भी बना के trigger किए हैं. So this is nothing but a delegate. Because problem क्या है, आप thread को directly method assign नहीं कर सकते. Thread को जैसे आपका ये thread है ना? So my thread, suppose my thread कहाँ declare किया हमने? Thread है, thread declare किया. So thread dot method is equal to my thread, ऐसा आप दे नहीं सकते, because no method can be passed directly to a thread. So that is a problem. So that's why अब उसको क्या करेंगे, एक पॉइंटर का, थ्रेड को क्या कर रहे हैं, हम एक पॉइंटर का मेमोरी लोकेशन हम असाइन कर रहे हैं यूजिंग दिस डेलीगेट. सो दैट्स व्हाई डेलीगेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको डेलीगेट्स के प्रैक्टिकल में ही मैंने समझाया था कि डेलीगेट जब तक क्लैरिटी से समझ में नहीं आता तो आपको इवेंट्स का प्रॉब्लम आएगा. देन इसके ऊपर काफी सारे और डिपेंडेंसीज है, लाइक थ्रेडिंग इज आल्सो बेस्ड ऑन दिस डेलीगेट. सो पूरा डॉटनेट फ्रेमवर्क में hundreds of delegates have been created by the .NET framework itself. So ऐसा continuously एक के ऊपर dependencies है. अभी आपको clearly समझ में आ रहा होगा कि ये this is nothing but a delegate in which we are passing the method name of our own implementation. ये अपना खुद का method implementation है, ये method को हमने pass किया है. And thread start आप उसको जाके देख सकते हैं go to definition में. Go to definition करेंगे तो उसमें आपको this will clearly show the method signature here. So you have to comply with this. So you can see that is coming from system.threading. Okay. So you have to obey to this particular delegate signature. So that's why आपका ये जो पैरामीटर पास करने का, ये जो पैरामीटर मतलब ये जो मेथड का रेफरेंस पास करने का तरीका ऐसा ही होता है. So this is how we can instantiate a new thread in your .NET framework. Okay, so if you got this completely, then we will move on to the second one. I guess nobody is having any questions from this example. अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. It's very simple example. आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, कुछ और मेथड आप कॉल करो एंड पास करो थ्रेड स्टार्ट में एंड इसको स्टार्ट करो. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप ये कॉल नहीं करेंगे तो ये कभी नहीं होगा. जब तक आपका थ्रेड स्टार्ट नहीं होता तब तक ये आपको कुछ दिखेगा नहीं, मेथड इन्वोक ही नहीं कर सकते. Okay, so that's all. This is a basic example. Then second one is how to थ्रेड पूल है, बट थ्रेड पूल के आने के पहले मैं एक छोटा सा और एग्जांपल में दिखा देता हूँ. थ्रेड पूल के लिए बाद में आएंगे. दिस वन इज अबाउट द स्लीप. ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ. इसमें लिखा है नहीं स्लीप, स्लीप तो रहना चाहिए. स्लीप दिया ही नहीं, स्लीप तो दिया ही नहीं. ओके, एनीवेज आई विल गिव यू द एग्जांपल. स्लीप काफी इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है, सो इन दिस वन आई विल टेक टू लेट अस रिमूव ऑल दिस क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ना नहीं चाहिए. तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे पूरा का पूरा मैं डिलीट कर रहा हूँ. So it's now a clean slate. Now what I will do is I will just create public static thread worker and I will take worker2. Sorry, worker2. ना दो वर्कर थ्रेड्स को मैंने लिए. Then I will simply write here. पहले तो एक मेथड बनाना पड़ेगा. मेथड बना लेते हैं क्योंकि वो डेलीगेट अपने को पास करना है ना. सो डेलीगेट पास करने के पहले मेथड को रेडी करना पड़ेगा. सो फॉर दैट आई विल टेक public static let us take counter. Okay, then
इसमें हम क्या करेंगे, console.writeline entering counter number 1, ऐसा कुछ मैसेज हम अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, नहीं तो ये अगर नहीं लिखेंगे तो आपको आउटपुट में क्लैरिटी नहीं आएगी. Otherwise it is not required, only for our demonstrational purposes we are writing this statement. Then I will take some 100 and inside this console dot background color is equal to console color dot blue. Okay, so console color means that is your output actually. Okay, and then I will simply take I plus इसके सिंटैक्स के फॉर्मेटिंग में लग जाओ. अभी मैं एग्जांपल के लिए मैं ऐसा अपेंड कर रहा हूँ. ओके, लाइक अदरवाइज आप स्ट्रिंग बिल्डर भी ले सकते हो. तो ओनली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट आई एम क्रिएटिंग द शॉर्टर फॉर्म, है ना. ये शॉर्टर फॉर्म है, बट तो एक्चुअल प्रोग्रामिंग करते टाइम हम ये इसको यूज नहीं करेंगे. देन आई विल राइट थ्रेड डॉट स्लीप maybe with some 3 milliseconds, 3 seconds actually, and then console dot write line and exiting counter number 1. ये ऐसा में एक मेथड बनाया. So what it is doing, it is simply iterating through some 100 times, and whenever that is inside this for block, the background color of the console will be converting into the blue, and simply value print कर रहा हूँ. Value print करके see the important line of statement here. Here the thread will sleep for 3 seconds. So whenever the value is 30, so thread will be sleeping for 3 seconds. So that is the important thing that we want to attach here. Okay. And similarly, मैं इसको copy paste कर लेता हूँ क्योंकि दोबारा same type of logic मुझे build करना है. Okay. So इसको नाम दूंगा counter2. Then I will write this as counter2. Okay. And this time it is from 1012, क्योंकि आगे का नंबर्स लेना है मुझे, वही नंबर्स नहीं लेना है. ये 0 to 100 है और यहाँ पे 1012 सब 200. तो इसमें आपको क्लैरिटी से पता चलेगा कि कौन से थ्रेड के ऊपर कौन सा वैल्यू प्रिंट हो रहा है. नहीं तो दोनों अगर 0 to 100 लेंगे ना तो आउटपुट में आपको इतना क्लैरिटी नहीं दिखेगा. So that's why to show the difference between the outputs from these two counter methods, I have taken from 1012 to 200 in the second one, and I have taken from 0 to 100 in the first one. Okay. Then everything is same, just modifying the values of background color, and then here the condition also. अभी 30 तो आएगा ही नहीं क्योंकि स्टार्ट हो रहा है 101 से, है ना. तो हम इसको स्लिप करेंगे 150 पे, मिड पे हम स्लिप करेंगे और इसको नियरली 5 सेकंड्स तक हम स्लिप में डालेंगे. ओके, so this is exiting from counter number 2. So in that way we have taken two different methods. Okay. So then yes, I have created two methods. First one is counter and second one is counter2. And then I want to call these two counter methods like in the previous example. हमने जैसे previous example में exactly जैसे delegate के through thread start method के जो delegate के through हमने जैसे call किया same exactly वैसे ही call करेंगे inside the main method. So this is our main method. Okay, and console dot write line entering into execution. So something just I want to print. Then worker is equal to new thread, क्योंकि मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करके रखा हूँ, यहाँ पे इंस्टेंशिएट नहीं किया. ठीक है. So this is the worker and new thread
and inside this you can see, so thread का overloaded method सबको दिख रहा है यहाँ पे. This is the first one. Second one is thread start, है ना. Third one is thread start with some integer max stack size, and fourth one is thread start with integer max stack size. ऐसा चार अलग-अलग टाइप का overloaded methods है. इसमें हम second वाला लेंगे क्योंकि thread start अपने को करना ही पड़ेगा क्योंकि this is the delegate which we want to pass to the method. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, new thread start, and as the thread start is your delegate, you have to pass the method name. So method name is counter. Similarly, I have taken the second one, and here I will pass the second method name. जैसे हमने पहले बनाया second वाला भी ऐसे, ये अलग thread में चलेगा, ये अलग thread में चलेगा, क्योंकि this is new thread and this is new delegate, and this delegate is assigned with this method. Similarly, worker 2 is the thread which is instantiated here and which is given with the new thread start by passing the counter to method as its parameter. यहाँ तक का किसी को डाउट है? ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये लाइन तक कोई कंफ्यूजन है क्या? ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये देखो, ये थ्रेड को यहाँ पे डिक्लेयर करो या यहाँ पे डिक्लेयर करो, दोनों सेम ही है, बट हम एक्चुअली ये जो थ्रेड को स्टैटिक इसीलिए मेंटेन किया बिकॉज वी वांट टू गेट द डेटा यूनिफॉर्मली, मतलब उसका मतलब स्टैटिक में क्या होता है कि आपको n नंबर ऑफ इंस्टेंसेस में भी आपको सेम डेटा मिलेगा, सो उसको उसके लिए स्टैटिक लेना थोड़ा सेफ रहता है. सो वर्कर 2 ये जो मैंने मेथड्स दोनों लिया है, उसके बाद देन व्हाट आई विल डू इज वर्कर 2 का जो प्रायोरिटी है, ये देखो वर्कर 2 में बहुत सारे जो मेथड्स आपको सपोर्ट में दिखेगा, स्टार्ट है वो तो अपने को यूज करना ही पड़ेगा, प्रायोरिटी है, रिज्यूम है, अगर पॉज करेंगे तो रिज्यूम करना पड़ेगा, एबोर्ट कर सकते हो, दैट मींस यू कैन कैंसिल द थ्रेड एग्जीक्यूशन, देन इंटरप्ट कर सकते हो, है ना, चेक कर सकते हो इज अलाइव वेदर इट इज अ बैकग्राउंड प्रोसेस और नॉट, है ना, ये थ्रेड पूल से आ रहा है क्या ये जो थ्रेड, तो बहुत सारे मेथड्स आपको सपोर्ट के लिए मिलेगा. थ्रेड स्टेट, करंट थ्रेड का स्टेट क्या है ये भी आप चेक कर सकते हो, whether it is running, whether it is aborted, whether it is yet to be started, ये पूरा ये प्रॉपर्टी है. जैसे ये प्रॉपर्टी को कॉल करेंगे तो प्रिंट करके देगा कि whether it is running or it is in a pausing mode, है ना, पॉज मोड में है. ये सब कुछ आप ट्राई कर सकते हो. तो जैसे इंस्टेंशिएट करने के बाद आपको सारे मेथड्स दिखेंगे. राइट नाउ आई जस्ट वांट टू पास द प्रायोरिटी. प्रायोरिटी इज, यू कैन सी द प्रायोरिटी आता है इसमें से थ्रेड प्रायोरिटी से, ठीक है. So thread priority is your class, which is this is an enumeration. इसमें नॉर्मल करना है, लोएस्ट करना है, हाईएस्ट करना है, वो नॉर्मल करना है ना. तो ये जो भी पास करना है आप पास कर सकते हैं. अभी मैं थ्रेड 2 को हाईएस्ट प्रेफरेंस देना चाहता हूँ. हाईएस्ट प्रेफरेंस दूंगा तो क्या होगा, ये जल्दी खत्म करेगा, ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि इसका प्रायोरिटी ज्यादा है, इसका वेटेज ज्यादा है. ओके, देन वर्कर को स्टार्ट करूंगा मैं एंड वर्कर 2 को स्टार्ट करूंगा, दोनों को स्टार्ट करूंगा. देन कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है. तो राइट लाइन में मैं करूंगा एग्जिटिंग फ्रॉम एग्जीक्यूशन स्टॉप करेंगे, एग्जीक्यूशन इज स्टॉप, दैट्स ऑल. उसके बाद ये तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट में, क्योंकि नहीं तो ये क्या करेगा, आपका कंसोल बंद कर देगा. सो दिस इज to be given with every console application. ये सिर्फ कंसोल में करना पड़ता है, बाकी इसमें नहीं चलता. ये विंडोज में या वेब में या मोबाइल में ये पर्टिकुलर ऐसा आपको स्टॉप करने के लिए कुछ स्टेटमेंट यूज करने की जरूरत नहीं. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. ऑब्जर्व केयरफुली, 30 के बाद पॉज किया 3 सेकेंड्स और कंटिन्यू किया, देन आफ्टर 150 से स्टार्ट हो. ये देखो, ये 150 के टाइम तक थ्रेड 2 भी स्टार्ट हो चुका है. 1, उसके बाद 101, 2, 3, 102, 4, 103, 104. इसमें नंबर ऑफ मैं इसको थोड़ा क्लैरिटी से समझाता हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा. ये देखो, हमने क्या किया यहाँ पे, 0 to 100 तक जो इटरेट कर रहे हैं ना वो ब्लू कलर में दिया है. यहाँ पे ब्लू कलर दिया है ना,
जो भी ब्लू कलर का है वो आ रहा है आपका थ्रेड 1 से, ठीक है। एंड जो भी रेड कलर का आ रहा है वो, ये जो रेड कलर का आ रहा है ना वो आ रहा है ये पूरा थ्रेड 2 से, काउंटर 2 से। थ्रेड 2 मतलब काउंटर 2 मेथड से, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसका प्रायोरिटी हमने ज्यादा सेट किया बाई पुटिंग दिस स्टेटमेंट। वर्कर 2 का प्रायोरिटी हाईएस्ट किया। वर्कर 2 मतलब काउंटर 2 मेथड का जो थ्रेड है उसको हमने सेट किया हाई। सो यू कैन सी दैट बाय द टाइम ऑफ blue is printing, uh, blue, यहाँ तक का चेक करते हैं। ये देखो, ये थ्रेड 2 का 150 तक होते होते आपका काउंटर 1 का मेथड्स का एग्जीक्यूशन बहुत ही कम था। इसमें कलर का थोड़ा आपको डिफरेंस ऊपर नीचे हो गया है, क्योंकि जब तक थ्रेड एक्सेस करके प्रिंट करते टाइम कलर चेंज नहीं हो पा रहा। तो दैट्स व्हाई 114 इज गिवन विद द ब्लू कलर, बट 114 को कलर होना चाहिए रेड कलर, बट 12 को कलर होना चाहिए ब्लू कलर। बट जैसे वो ट्रांसलेशन के पहले ही वो प्रिंट कर रहा है, सो दिस इज व्हाई सम एनोमली आपको दिख रहा है। दोबारा मैं रन करता हूँ, वो ऐसे ही आएगा। देखो अभी तो एग्जीक्यूशन स्टॉप भी प्रिंट कर दिया उसने। एग्जीक्यूशन स्टॉप क्योंकि प्रिंट कर लिया क्योंकि ये मेन मेथड में है। अब मेन मेथड में ये इसको किक स्टार्ट किया, इसको किक स्टार्ट किया, एग्जीक्यूशन स्टॉप भी प्रिंट कर लिया। देन इट इज प्रिंटिंग विद द 0 to 10 entering counter number 2, then this और randomly आपको प्रिंट करके दिखेगा। बट 151 के बाद, क्योंकि 150 स्टॉप 150 के बाद हमने नियरली 5 सेकंड्स तक रुक रहे हैं। 5 सेकंड्स के अंदर ये पहला वाला खत्म हो जाता है। सो दैट्स व्हाई आफ्टर द 150 स्टेटमेंट प्रिंट नंबर आपको 2 ही चलता रहेगा, पहला वाला नहीं चलेगा। Now you can clearly see the red color is in the second thread and blue color भी जो भी है वो पहला थ्रेड का है। हर बार ये नया नया आउटपुट देता रहेगा। अब देखिए कुछ और ही आउटपुट देगा ये, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा ही। पहले तो 10 तक प्रिंट कर रहा था, अभी 3 तक प्रिंट किया, उसके बाद एंटरिंग काउंटर नंबर 2, उसके बाद 4 को प्रिंट किया, तब तक मेन थ्रेड सेकंड वाला चालू हो गया, ठीक है। एंड जब तक इसका 150 तक नहीं आता वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, बिकॉज नाउ दिस इज गेटिंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी। सो जैसे ही हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलता है, 16 को वैल्यू प्रिंट करने के लिए थ्रेड 1 को काफी टाइम वेट करना पड़ा। So that means it has to nearly wait for 50 values of the second method to print for the 16th value of the first method. समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या बोल रहा हूँ। ये जो सेकेंड मेथड का 150 वैल्यू तक जब तक प्रिंट नहीं होता है, इसका 16th का वैल्यू प्रिंट ही नहीं कर पाया, बिकॉज द थ्रेड 2 इज गिवन विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी। सिमिलरली आप लोएस्ट प्रायोरिटी चेक करोगे तो ये पहला प्रिंट कर देगा, उसके बाद ये सेकंड वाला प्रिंट करेगा, ऐसा भी वो आप डिफरेंस देख सकते हो। सो कलर कोडिंग हमने इसीलिए दिया सो दैट यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड ये कौन सी नंबर पे आ रहा है और कैसे कैसे वो थ्रेड 1 को थ्रेड 2 को जो भी ब्लू कलर है वो थ्रेड 1 है, जो भी रेड कलर है वो थ्रेड 2 है। सो हमने ये अगर यहाँ पे स्टॉप नहीं किया, अब देखो क्या होता है। यहाँ तक एग्जीक्यूशन स्टॉप करने के बाद ही, एग्जिटिंग काउंटर नंबर 1 के बाद ही ये किक स्टार्ट हुआ। लेट अस इसको मैं कमेंट करता हूँ फिलहाल के लिए। देखो यहाँ पे मैं सिंपली कमेंट कर देता हूँ। अब चेक करते हैं कैसा बिहेव करेगा ये। जब तक इसका 200 वैल्यूज प्रिंट नहीं होता रेड वाला, तब तक ये देखो ये फर्स्ट थ्रेड का 30 वैल्यू भी प्रिंट नहीं हुआ, बिकॉज दिस गॉट द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो पूरा थ्रेड का एग्जीक्यूशन खत्म करने के बाद सेकंड वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं इन द ब्लू कलर, फर्स्ट का मेथड का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं इन द ब्लू कलर। सो एग्जिटिंग काउंटर नंबर 2 प्रिंट करेगा, देन फाइनली एग्जिटिंग काउंटर नंबर 1 प्रिंट कर रहे हैं आफ्टर सम टाइम। सो इन दैट वे we got different methods for manipulating the thread in your own way. Sleep करना है, abort करना है, cancel करना है, resume करना है, सब कुछ कर सकते हो। इसके ऊपर आपको थोड़ा ट्रायल एंड एरर का आपको करना पड़ेगा, तभी आपको ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा। ओके, सो मैं इसको जब रन करूंगा तो
ये डिफरेंट डिफरेंट वेज में बिहेव करता है। 3 सेकेंड्स तक इसने स्टॉप किया एग्जीक्यूशन, एंड मीनवाइल इसका 5 सेकेंड्स कंप्लीट हो गया है, एंड देन आफ्टर इट इज मूविंग ऑन टू द कंप्लीशन ऑफ इट्स स्टेटमेंट्स। इतने लोगों को ये एग्जांपल नहीं समझ में आया है, दे कैन आस्क द डाउट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है स्लीप का, रेज्यूम का। ऐसे आप रेज्यूम भी कर सकते हो, स्लीप भी कर सकते हो, बाद में कुछ टाइम तक रेज्यूम भी कर सकते हो, बट अपने को रेज्यूम करने की जरूरत नहीं है, ओनली 3 सेकेंड्स तक वो स्टॉप करेगा। अगर आप इनफाइनाइट टाइम के लिए, जैसे मान लो स्लीप मेथड के अंदर आप देखो यहाँ पे मिली सेकेंड्स पास कर सकते हो, ठीक है। सो ये जो मिली सेकेंड्स जब हम पास करेंगे यहाँ पे, या टाइम स्पैन भी दे सकते हो। टाइम स्पैन देना मतलब न्यू टाइम स्पैन, ओके। एंड इसमें टाइम स्पैन में 4 घंटे 30 मिनट 20 सेकंड, ऐसा भी नहीं ले सकता। मतलब एक एक थ्रेड को आप 4 घंटे भी आप सस्पेंड करके रख सकते हो, लेकिन सस्पेंड करने के बाद उसको मुझे बीच में कहीं से तो भी उसको इन्वोक भी करना है, ओके। देन you can depend on this thread dot region based on some condition, based on some condition you can set about so यहाँ से आपको रिज्यूम करना पड़ेगा, सॉरी, worker dot resume, so something like that you can provide your code, so आपको वो प्रॉपरली वो एग्जीक्यूशन वो सब स्टॉप करके दिखाएगा, एग्जीक्यूट करके दिखाएगा। ऑल दिस थिंग्स यू कैन ट्राई, है ना। अभी मैं इसको निकालूंगा, नहीं तो ये इतना तो वेट कोई नहीं करेगा 4 घंटे या 1 घंटे, ठीक है। So this is how we can suspend the threads. We can see we can put the threads in pause mode. These many number of milliseconds. 3000 milliseconds मतलब 3 seconds, ठीक है। यहाँ पे हमने 5000 दिया तो 5 seconds। अगर आपको 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए करना है तो 10,000 सेकंड। So in that way you have to provide the values. आपका मेथड सब कुछ बता देता है। ये देखो यहाँ पे sleep that is given in the milliseconds. So any doubts from this example? हमने 2 थ्रेड्स को इनिशियलाइज किया, 2 मेथड्स को बनाया है, 2 अलग अलग मेथड्स हैं, और दोनों को इंस्टेंशिएट किया है बाय पासिंग डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। हाईएस्ट प्रायोरिटी वो सब सेट कर रहे हैं, और जैसे हमने थ्रेड को स्लीप कर रहे हैं 5 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा जब आप ये स्टार्ट करेंगे एक बार। दैट्स ऑल। एनी डाउट्स फ्रॉम दिस? No. ठीक है। सो ये स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये ऐसा इसमें देना चाहिए तो नहीं दिया, चलो ठीक है, हमने तो कर लिया, ट्रेडिंग में आता ही है। सो पैरामीटराइज थ्रेड स्टार्ट भी आप दे सकते हैं। पैरामीटराइज थ्रेड स्टार्ट मतलब कुछ नहीं है, आपको डेलीगेट पास करने का तरीका समझ में आ गया तो पैरामीटराइज थ्रेड स्टार्ट भी कर सकते हो, क्योंकि डेलीगेट को ऑब्जेक्ट कैसे पास करेंगे वैसे ही इसको भी पास करना पड़ता है। देयर इज नो डिफरेंस एज सच, है ना। अभी देखते हैं थ्रेड पूल के बारे में। इफ यू गॉट द आइडिया ऑफ थ्रेड स्टार्ट, अभी हम देखते हैं थ्रेड पूल। इसमें थ्रेड पूल में क्या होता है कि एक्चुअली आपको मैन्युअली थ्रेड ऐसा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये देखो यहाँ पे न्यू थ्रेड, ऐसा कोई पर्टिकुलरली लेने की जरूरत नहीं है। दिस आई विल कॉपी थ्रेड स्लीप, and I will remove this, and I will remove this also. पूरा इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं उसी उसी में करूँगा, उसमें भी कर सकते हैं, बट थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है किसी किसी को, प्रॉपरली अगर देखा नहीं स्क्रीन को तो बिल्कुल क्लैरिटी नहीं आएगा। ओके, तो इस बार भी हम वही करने वाले हैं, है ना। इस बार भी हम सेम चीज वही करने वाले हैं, बट नाउ वी विल टेक फ्रॉम द थ्रेड पोर्ट। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पे स्टैटिक वॉइड
process with thread method, एक लूंगा मैं थ्रेड के द्वारा फॉर मे बी सम टाइम। ओके, इसके अंदर क्या करूंगा, थ्रेड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू थ्रेड प्रोसेस। व्हाट इज दिस प्रोसेस? दिस इज वन मेथड विच आई हैव टू क्रिएट, है ना, क्योंकि ये डेलीगेट है, ये मेथड पास कर रहा हूँ मैं। अभी कुछ है ही नहीं तो एरर दे रहा है, लेकिन अभी बनाऊंगा मैं, देन ऑब्जेक्ट को मैं स्टार्ट करता हूँ। ये देखो ऑटोमेटिकली सिंटैक्स भी दे रहा हूँ। And then what I will do, I will take static void. Now I will take process, some object. This is a callback. And let us keep this as it is. Particularly कोई implementation नहीं दे रहा हूँ मैं. Okay. So उसको ऐसे भी रख सकते हैं। ये मेथड को मैं पास कर रहा हूँ थ्रेड में। Okay, ये मेथड को मैं पास कर रहा हूँ। ये मेथड में आप कुछ भी implementation रख सकते हो, जैसे आपके ऊपर है। Okay, so but inevitably I have to start one method. वो कौन सा मेथड है? ये ऐसा कोई नहीं, एक मेथड है। Okay, then what I will do is I will take one more method. तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ सीधा सेम लाइन पे, बट इसका नाम दूंगा मैं यहाँ पे विथ थ्रेड पूल। ये जो ले रहा है ना, वो अभी पूल से लेगा। ये सारे फंक्शनलिटी सेम है, ये अभी चेंज हो जाएगा, है ना। अभी ये न्यू थ्रेड तो नहीं बना रहे हम, इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, इसमें इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। दिस इज प्रोसेस विद थ्रेड मेथड है, ये है प्रोसेस विद थ्रेड पूल मेथड। वो डिफरेंशिएट हम इसलिए कर रहे हैं कि सो दैट अपने को समझ में आएगा कि कैसे थ्रेड का बिहेवियर रहता है अगर आप पूल से करते हो या इंस्टेंशिएट करते हो एक्सक्लूसिवली इन दिस वे। Okay, now as it is from the thread pool, now I will take thread pool. Okay, देखो यहाँ पे क्लास आ गया। Thread pool is a static class actually. Okay, so thread pool dot queue, ये देखिए एक मेथड आ रहा है queue user work item. What this does, queues a method for execution. Queues a method for execution. The method executes when a thread pool thread becomes available. Thread pool thread becomes available. तो ये मैं वेट करूंगा जब तक कोई थ्रेड कॉल फ्री नहीं होता, तब तक ये पूल अटैच नहीं करेगा अपने एप्लीकेशन को कोई थ्रेड के साथ। ठीक है, ये मेथड के अटैच करने का तरीका ये न्यू, जैसे इसमें मेथड के अंदर देखो वेट कॉल बैक। अब ये वेट कॉल बैक क्या है? ये टाइप है। अब इसके अंदर मैं प्रोसेस दे रहा हूँ। ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस इज माय मेथड। कुछ नहीं है, ये देखो, ये कॉल बैक मतलब ये इंस्टेंटली चालू नहीं हो रहा है, बट ये इंस्टेंटली चालू होता है क्योंकि थ्रेड तुरंत बनता है और ये तुरंत दे रहे हैं। बट एज इट इज ए कॉल बैक, it is given with this method called as wait callback and provide the method name in a delegate. So ये भी delegate ही है, देखो ना यहाँ पे, ये भी delegate ही है और ये भी delegate ही है। थ्रेड डॉट थ्रेड के अंदर ये delegate यूज करते हैं। अब ये है सिस्टम डॉट थ्रेडिंग डॉट क्लास में वेट कॉलबैक का क्लास यूज करते हैं। तो दोनों अलग अलग क्लासेस में है ना, इसीलिए उसका जो इम्प्लीमेंटेशन भी अलग है। बट बेसिकली दीज आर डेलीगेट्स एंड यू हैव टू पास द मेथड नेम एज अ रेफरेंस। यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं, यहाँ पर भी वही कर रहे हैं। ठीक है, एंड जब भी वो उसको थ्रेड मिलता है तो ये उसका एग्जीक्यूशन के लिए भेज देगा। समझे? एंड नाउ अपना बेसिक कोडिंग कंप्लीट हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन में जाएंगे। मेन में क्या करेंगे, to check how many milliseconds are passed, I will take a stopwatch. Okay, so my watch is equal to new stopwatch. So new stopwatch. ये stopwatch कहाँ पे आएगा? ये आपको आएगा सिस्टम डॉट डायग्नोस्टिक्स। तो बाय डिफॉल्ट ये सिस्टम डॉट डायग्नोस्टिक्स आपका इम्प्लीमेंटेड है, तो इसलिए ये एरर नहीं आ रहा। अगर ये आपको इसको कमेंट करेंगे तो ये आपको क्वेश्चन पूछेगा ये क्या कौन सी क्लास है। ठीक है,
So that's why you have to enable this system.diagnostics. काफी important है ये diagnostics भी. Then I will create this stopwatch. Then what I will do is I will write some full execution. My watch dot start करूंगा process with क्या है वो process with thread pool method है ना. So इसको मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे एंड माई वॉच को स्टॉप करूंगा. ये क्यों कर रहे हैं? ये मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, इससे पहले हमने स्टार्ट किया है, बाद में हम स्टॉप कर रहे हैं. ये एक हो गया. ठीक है, बहुत सिंपल है. ये दो अलग अलग मेथड्स है, ये एक मेथड है, ये एक मेथड है. इसको कितना टाइम लग रहा है और इसको कितना टाइम लग रहा है वो चेक करने के लिए हम ये इसको यूज कर रहे हैं. देन इसमें मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ प्रिंट करके देख लेते हैं. console.writeLine time consumed by thread pool method is कितना है, ये माई वॉच का जितना टाइम है वो है. सो माई वॉच का elapsed milliseconds ले लेते हैं, है ना, या टिक्स भी ले सकते हो, कितना टिक्स में कंप्लीट हुआ. ठीक है, elapsed टिक्स या मिलीसेकंड्स ले लेते हैं, मिलीसेकंड्स डॉट टू स्ट्रिंग, कितने मिलीसेकंड्स में वो कंप्लीट किया. ओके गॉट इट. समथिंग एक्सपेक्टेड. हाँ, मेथड है ना, ये मेथड यहाँ पे स्टार्ट किया है, दो बार आ गई है, तो निकालना पड़ेगा. हाँ ये सही है. इसमें हम क्या कर रहे हैं, टाइम कंज्यूम्ड बाय थ्रेड पूल मेथड इज whatever the method whatever the my watch elapsed milliseconds. क्योंकि ये इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड को कॉल करने के पहले यहाँ पे, और यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, तो बीच में जितना भी टाइम है ये मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए हुआ है ना, तो वो टाइम हम कैप्चर कर रहे हैं. सिमिलरली ये मैं पूरा कॉपी कर लूंगा क्योंकि वही लेना है बार बार, या ये आप एक थोड़ा डिफरेंशिएट दिखाने के लिए ऐसा भी दे सकते हो, सो दैट आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं. सो दिस इज थ्रेड एग्जीक्यूशन. ये पूल से नहीं आ रहा, ये थ्रेड एग्जीक्यूशन से आ रहा है. एंड इसमें भी सेम माई वॉच को स्टार्ट किया मैंने, बट दिस टाइम दिस इज नॉट पूल मेथड, दिस इज नॉर्मल मेथड, है ना. सो थ्रेड मेथड करूंगा मैं यहाँ पे, और माई वॉच को स्टॉप करूंगा, और यहाँ पे अगेन सेम थिंग, इसमें कोई चेंजेस नहीं है. यहाँ पे सिंपली थ्रेड टाइम कंज्यूम्ड बाय नॉर्मल मेथड ऐसा कर लूंगा. ठीक है, देन कंसोल डॉट रीड लाइन हो गया. मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, दो मेथड्स बनाए हैं. एक मेथड है थ्रेड के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा मेथड हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्रेड टूल के साथ. ओनली दैट इज द डिफरेंस. और ये दोनों को हम स्टार्ट भी कर रहे हैं, दोनों को हम कॉल भी कर रहे हैं यहाँ पे. और कॉल करने के पहले एक माई वॉच का एक दिस इज कमिंग फ्रॉम स्टॉप वॉच, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं कितना टाइम के लिए एग्जीक्यूट हुआ. अगेन सेकंड मेथड के लिए कॉल स्टार्ट कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, कितना टाइम के लिए एग्जीक्यूट हुआ ये चेक कर रहे हैं. दैट्स वेरी सिंपल एग्जांपल. ओके, एंड लेट अस रन दिस. अब देखो, थ्रेड पूल एग्जीक्यूशन से 14 मिली सेकेंड्स में आपका मेथड कंप्लीट हो चुका है. एंड वेयर एज थ्रेड को इंस्टेंशिएट करके, इन्वोक करके, उसके अंदर डेटा मेथड पास करके जो भी है उसके लिए 109 मिली सेकेंड्स का टाइम हो. दैट मीन्स थ्रेड पूल इज वेरी वेरी फास्ट. थ्रेड पूल इज वेरी वेरी फास्ट. ये हमने कहीं हार्ड कोडेड वैल्यू दिया नहीं यहाँ पे. 14109 दे आर कमिंग फ्रॉम हियर. elapsed milliseconds है, कितने मिली सेकंड्स के लिए चला है ये खुद ही बता रहा है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई जब भी आप अगर थ्रेड को इंस्टेंशिएट करोगे ऐसा ऐसा ये ऐसा,
it is not performance oriented, but whereas if you take the thread directly from thread pool, this will give you the fastest results. But depends on your operating system also. अगर आपके operating system में thread C बचा हुआ नहीं है, बहुत सारे अभी देखो भाई करंट स्टेट के ऊपर है, मेरा लैपटॉप की करंट स्टेट में बहुत सारे पूल्स बहुत सारे थ्रेड्स अवेलेबल है इन पूल, सो दैट्स व्हाई इट इज एबल टू हैंडल. नेक्स्ट टाइम मैं करूंगा ना, ये तो याद रखो 14109, तो कुछ और वैल्यूज देगा. दिस टाइम इट इज गिविंग 2 और 357, तो बहुत ही हाइट हो गया है, ठीक है. 2 मिली सेकेंड्स कहाँ पे है और 357 मिली सेकेंड्स कहाँ पे है. So that's why thread pool is very, very fast. Let us run one more time. Okay, so it varies. Again, 14201. So any time it is nearly 100 times or nearly 50 times. ये यहाँ पे तो 100 times है, nearly 100 times faster है thread pool से अगर आप लेंगे तो 3 and 285 is nearly 300. So 100 times better performance it is providing if you are taking the threads from the thread pool. Got the clarity? ये practically demonstrate करके दिखा रहे हैं coding के through, so that it will come to know which is better and which should be the best way to take the threading concept. इसमें किसी को डाउट है क्या? बट इन जनरल क्या करते हैं, थ्रेड पूल कहाँ पर लेते हैं, जब आपका थ्रेडिंग इंप्लीमेंट करना है मोर देन सम 4 to 5 थ्रेड्स को आपको इंस्टेंशिएट करना है, तो वहां पे जनरली थ्रेड पूल के लिए जाते हैं. बट वेयर एज इफ यू वांट टू हैव ए सिंगल थ्रेड, है ना, तो जनरली ये ज्यादा अप्रोच रिकमेंडेड है, ये अप्रोच ज्यादा रिकमेंडेड है, बिकॉज आपको सिंगल एक ही थ्रेड एक और इंस्टेंशिएट करना है, तो सो दिस इज मच बेटर. But whereas if you want to have some 5 to 6 threads or 10 threads parallel you want to process, then this is the fastest and as well as the safest way to go for the threading concept. Thread pool. किसी को डाउट? Yes. Anybody is having any doubts? इसको रिपीट करना है या एक बार ओके सर, एक बार बताएं. Yes. So the concept is based on this thread pool. Okay, so initially we have seen with the threading concept. Threading में normally क्या होता है कि आप जब भी thread बनाते हो ऐसे ही बनाते हो, thread, object, new thread, and this is your function और method. ये delegate है तो हम delegate के टाइम में हमने समझा कि कैसे उसको पास करना पड़ता है functions. तो ये मैंने एक function पास किया है, function और method, ठीक है. So ये मैंने पास किया, उसके बाद आपको ये call करना पड़ता है. That's all. So this is coming under this thread start. Thread start भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो. Okay, so this is nothing but the thread start. New thread by new thread start. Okay, so in which you have to pass the process. अल्टीमेटली वो बैकग्राउंड में क्या है ना, एक दूसरे से डिपेंडेंट है ये, तो ये रिप्रेजेंट हो गया, क्यों नहीं दे रहा है राइट द थ्रेड स्टार्ट. आकर इसके अंदर new thread. Okay, I think I have to initialize before I can use this in this way. New thread and new thread start counter. प्रॉब्लम क्या है इसमें?
represent the no overloaded for process matches delegate thread start. Delete static thread. अचानक से क्या हो गया? Object new thread start represent the method that executes. No overload for process matches delegate thread start. प्रोसेस हमने यहाँ पे दिया है. अच्छा, एक कॉल बैक दे रहे हैं करके ये अगर एक थ्रेड स्टार्ट देना है ना, फिर आपको ये चेंजेस करना पड़ेगा, है ना. सो डिफरेंट डिफरेंट वेज है तो करने का. ठीक है, आप इसको वो एग्जांपल में हमने वैसा चेक किया तो ये एग्जांपल में ऐसा चेक करो, क्योंकि थ्रेड को आप इनिशियलाइज ऐसा भी कर सकते हैं, इंस्टेंट ऐसा भी कर सकते हैं. न्यू थ्रेड दे दो सीधा. ठीक है, एंड न्यू थ्रेड देके आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो जैसे. So let us save this. Now what is this? This is thread 2. Okay. Then yes, now it is back to normal. So ये भी जो दो तरीके हैं, दोनों तरीके में आपको कौन सा यूज करना है वो आपके ऊपर है. इसमें कॉल बैक के लिए दिया है तो कॉल बैक का आप वो भी ले सकते हो, है ना. ऐसे ही देना कोई जरूरी नहीं है. Ultimately, our example is based on this, how to pass the thread as well as this thread pool. तो जब thread pool कॉल करेंगे तो क्यों यूजर वर्क स्टार्ट आइटम करेगा, एंड एज इट इज ए thread pool you need not start the thread independently because कौन सी thread को स्टार्ट करेंगे आपको तो कुछ पता ही नहीं है ना. सो थ्रेड आपको मिलेगा, जो भी मिलेगा वो उसके साथ अटैच करके ही मिलेगा और वो स्टार्ट भी हो जाएगा. So that's why we are not we are not calling this start from this thread pool. So automatically call होता है वो. And here we have taken the diagnostics class, that is stopwatch. पहले हम क्या कर रहे हैं, pool वाला मेथड के साथ स्टॉप कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, वॉच को चेक कर रहे हैं कितना टाइम्स के लिए लैप्स हुआ है. सिमिलरली नॉर्मल मेथड के लिए भी वॉच को स्टॉप कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, एंड चेक कर रहे हैं कितना टाइम्स के लिए वो चला. एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ रिस्पांस. हमेशा ये कम ही देगा, थ्रेड पूल से कम ही आता है रिस्पांस, और नॉर्मल थ्रेड में कंजम्पशन ज्यादा है. मतलब यू हैव टू वेट फॉर मोर टाइम, you have to wait for more time. Okay, so now understood everybody? Yes, sir. Yes, sir. Then yes, so after this particular topic, अभी ये हमने ये कवर कर चुके हैं, ये भी कवर कर चुके हैं. Then we want to see this log, monitor and interlock. ये log monitor समझ में आ गया, तो बाकी तो कुछ है ही नहीं. ठीक है, so log कैसे कर सकते हैं, मॉनिटर के मॉनिटर क्या है वो एक बार चेक करके देखेंगे. so उसके लिए log को रन करने के लिए सर पहले ये नोटपैड पे कॉपी करके रखिए. कर लिया ना मैंने यहाँ पे. Okay. थ्रेड को कॉपी किया. Okay, so this is my example. Now everything is clear. So इसीलिए बार बार क्लियर कर रहा हूँ, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा. मैं उसी में करूंगा ना तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए मैं क्लियर करके दोबारा बता रहा हूँ. So let us take a method public void thread job something like that. Then I will take the method will take some printing. ये प्रिंट इसीलिए कर रहा है so that we can come to know the इसमें क्या प्रिंट करेंगे. Here are the numbers for okay, and the values thread dot current thread dot name. अच्छा, so something dot writing thread dot current
sorry, this is not inside the string because this is the value that I want to print. Current thread dot current thread dot name. तो console dot write line ये क्या करेगा, करंट थ्रेड का नाम प्रिंट करेगा, उसके बाद here are the numbers for the current thread, है ना, ये जो भी है हम बाद में चेक करेंगे कैसे करने वाले। इसके बाद में क्या करूंगा इसमें, for same some numbers तक हम इटरेट करेंगे एंड उसके बाद रैंडम क्लास को मैं इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ एंड अब ये रैंडम क्लास कहाँ से आ रहा है, ये रैंडम क्लास आ रहा है सिस्टम डॉट रैंडम से। तो जैसे हमने सिस्टम लिया ना तो ऑटोमेटिकली वो रैंडमली आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है। सिस्टम डॉट रैंडम, नाउ थ्रेड डॉट स्लीप 1000 into r dot random dot next टू नॉन नेगेटिव रैंडम इंटीजर वैल्यूज तक मैं उसको स्लीप करता हूँ। मतलब अभी स्लीप का परमानेंट 3000 5000 हम हार्ड कोड करके नहीं दे रहे हैं, परमानेंट वैल्यू सेंड नहीं कर रहे हैं, रैंडम वैल्यू सेंड कर रहे हैं। ओके, सो जो भी रैंडम नंबर आता है 10 के अंदर, सो 10 के अंदर जो भी रैंडम नंबर आते हैं उसको मल्टीप्लाई करेगा 1000 से एंड उतने टाइम के लिए थ्रेड को स्लीप करेगा। ओके, सो देन कंसोल डॉट राइट एंड देन ये पूरा होने के बाद यहाँ पे फिर से हम कंसोल डॉट राइट लाइन करेंगे, ये जस्ट एक स्पेस देने के लिए, तो वो पता नहीं चलेगा, एक ब्रेक देने के, चलो ठीक है ब्रेक ही देते हैं, ठीक है। ये हो गया एक मेथड थ्रेड जॉब का, इसमें पहले जैसे ही ऑलमोस्ट, ओनली थिंग इज वी हैव टेकन दिस रैंडम class for providing the different sleep values. Okay, then ये मेथड में अब मैं इसको प्रिंटिंग थ्रेड, सॉरी थ्रेड एग्जाम्पल, okay, so tc is equal to new thread example, then थ्रेड का मैं एक एरे बनाऊंगा, ठीक है, एंड उसको मैं पास करूंगा with some 10 default threads, and now I will take these threads ts of I is equal to new thread, then new thread start, and in which we have to pass the method. So what is the method name? Method name is this thread job, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये इंस्टेंस का थ्रेड जॉब कहाँ पे ये मेथड हमने पास किया। So each of the thread is assigned with this thread job, so that means हर एक thread के ऊपर आपको एक प्रिंट करके मिलेगा with some different random values of the sleep. So कोई एक thread पे 3 seconds मिलेगा, कोई दूसरे thread पे 7 seconds मिलेगा, that depends on this random number. Okay, so that we cannot foresee कौन सा वैल्यू इसके अंदर जा रहा है, एग्जीक्यूशन के टाइम में ही आपको पता चलेगा। Okay, so then I am assigning with some name,
string dot format, या तो ऐसे भी दे सकते हैं, है ना? सो वर्कर थ्रेड प्लस आई, ऐसा भी दे सकते हैं। जनरली आप अपेंड करो, स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड करो, ठीक है, या फिर स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट यूज करो। सो ये हो गया इसके जो प्रिंट करने का तरीका। देन इसके बाद हमने थ्रेड को तो बना दिया यहाँ पे, न्यू थ्रेड करके। थ्रेड को स्टार्ट नहीं किया ना, तो स्टार्ट करना भी इम्पोर्टेंट है। तो हम इसीलिए क्या करेंगे, फॉर ईच ले लेंगे। फॉर ईच के अंदर फॉर ईच थ्रेड टाइप ऑफ टी इन द टीएस, है ना? तो ये जो टीएस क्या है अपना, कलेक्शन है, एंड in which we are going to write t dot start. So हर एक थ्रेड को हम इंस्टेंस इनिशियलाइज कर रहे हैं, and after that we are simply providing the console dot read line. मेरे ख्याल से इतना sufficient हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। अब बेसिकली बहुत सिंपल एग्जांपल है, एक मेथड हमने बनाया है पहले जैसे एग्जांपल में, ओनली डिफरेंस इज दिस टू लाइन्स, बाकी तो पूरा सेम ही है, बाकी पूरा सेम है। हार्ड कोड करने के बदले में हमने क्या किया, रैंडम वैल्यूज प्रोवाइड किया कि जब भी थ्रेड जॉब कॉल करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे वो प्रिंट करता जाएगा इतने मिली सेकेंड्स के स्लीप के बाद। एंड द मेन डिफरेंस इज वी हैव क्रिएटेड एन एरे ऑफ थ्रेड्स, थ्रेड के एरे बनाया, और हर एक थ्रेड को हम असाइन कर रहे हैं विद सम नेम, है ना? उसका जो भी नाम है, 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, एंड हर एक थ्रेड को ये मेथड भी असाइन कर रहे हैं, and then we are starting all the threads. Okay, so let us see what happens. इसमें आपको आउटपुट है ना बहुत ही ऊपर नीचे आएगा, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसमें क्लैरिटी नहीं आएगा। देखो ये पूरा कंप्लीट हो गया है, हाँ कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं स्टार्टिंग से, वर्कर थ्रेड 1, ठीक है, हियर आर द नंबर्स फॉर वर्कर थ्रेड 1। उसके बाद नंबर्स को तो प्रिंट नहीं किया, वर्कर थ्रेड 0 पे आ गया, हियर आर द नंबर्स फॉर वर्कर थ्रेड 0, है ना? ये उल्टा पुल्टा कॉल कर रहा है। देन वर्कर थ्रेड 3 भी कॉल हो चुका है, देन 0 to 0 0 1 2 प्रिंट किया स्टार्टिंग वाले का शायद, देन 0 प्रिंट किया शायद 0 का, देन 3 प्रिंट किया शायद इसका, ये सीक्वेंस के बाद में 0 आ रहा है, और ये सीक्वेंस के बाद 1 आ रहा है, देन 3 के बाद 4 आ रहा है, बिकॉज ऑल द थ्रेड्स आर पैरेलली वर्किंग, है ना? सो इसमें आपको काफी जम्बल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगा, कुछ भी क्लैरिटी नहीं रहेगा, कौन सा 1 किसका है, कौन सा 0 किसका आ रहा है ना? आप देख सकते हो 0 1 2 शायद ये पहला वाला थ्रेड का है, अब 1 2 के बाद 3 आ रहा है, बट 3 के पहले सेकंड 0 वाला भी इंस्टेंशिएट हो गया, तो इसका 0 होने के बाद 3 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट होने के बाद 0 का 1 प्रिंट हुआ, 1 के बाद इसका 3 के बाद 4 प्रिंट हुआ, इन द मीनवाइल 4 का भी इंस्टेंशिएट हो गया, 4 का इंस्टेंशिएट होने के बाद 4 के बाद 5 प्रिंट हुआ, अगेन 0 1 2 प्रिंट हो रहा है, ऐसा पूरी जम्बल्ड अप इंफॉर्मेशन आपको आएगा। so, इसको काफी डिफिकल्ट है ना? आपने इसको ब्रेक भी दिया हमने, काफी डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए। सो जब तक आपका जो शेयर्ड रिसोर्सेस है, शेयर्ड रिसोर्सेस के टाइम में क्या हो सकता है, जैसे एक फाइल को रीड करने वाले हो, एक शेयर्ड स्टैटिक वैल्यू का आप मॉडिफाई करने वाले हो, उसका प्रिंट दोबारा कॉल करने वाले हो, तो वो सब में ऐसा आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते व्हेन यू आर वर्किंग ऑन डिफरेंट नंबर ऑफ थ्रेड्स। तो उसके लिए एक फीचर दिया है दैट इज कॉल्ड एज लॉक। ओके, सो लॉक को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? नाउ दिस इज विदाउट लॉक, हमने यहाँ पर कहीं पर भी लॉक को इंप्लीमेंट नहीं किया। देखो यहाँ पर भी कहीं लॉक करके आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ओके, नाउ वी वांट टू अप्लाई सम लॉक ऑन दिस रेसिंग कंडीशन। अभी ये रेसिंग कंडीशन में चला गया। रेसिंग कंडीशन मींस हर थ्रेड कंप्लीट कर रहा है कंसोल के जो प्रिंट करने के लिए, तो जो जम्बल्ड अप इंफॉर्मेशन है वो मिक्स्ड है, एंड उसमें कोई क्लैरिटी नहीं आ रहा, एंड वो आपके आउटपुट का भी ऊपर असर कर सकता है। आउटपुट के ऊपर असर कर रहा है मतलब सपोज आपने एक ही मेथड दिया है, तो सभी मेथड्स पैरेलली वर्क कर रहे हैं, सभी मेथड्स पैरेलली प्रिंट कर रहे हैं,
and you might be having some dependency on this method on another method. तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन चालू हो जाते हैं. जब तक पहला वाला थ्रेड जॉब का आउटपुट नहीं आता तो दूसरे वाला थ्रेड जॉब 2 मेथड है उसमें आपको इनपुट में भेज नहीं सकते. ऐसा डिपेंडेंसीज भी आपको देना पड़ेगा. तो उस टाइम में और भी आपका कंफ्यूजन, कोडिंग का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है ना. तो उसके लिए हम लॉक के फीचर को इम्प्लीमेंट करेंगे. सो लॉक को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे, प्राइवेट ऑब्जेक्ट ये थ्रेड लॉक इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया न्यू ऑब्जेक्ट, है ना. सो मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ विद दिस नेम थ्रेड लॉक, है ना. एंड दिस इज एन ऑब्जेक्ट एंड मैं उसको लॉक करने के लिए क्या तरीका अपनाऊंगा, उसको मैं कॉल करूंगा बाय द कीवर्ड लॉक. ठीक है. एंड आई विल प्रोवाइड, ये सिंटैक्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर रहा है थ्रेड लॉक. ये ऑब्जेक्ट को मैं ऐसा डिफाइन करना पड़ता है. सो ये जो थ्रेड लॉक को मैं पास कर रहा हूँ, ये जो मेथड है मैं इसको पूरा रैप कर रहा हूँ. पूरा कहाँ तक रैप करूंगा, यहाँ तक रैप करूंगा मैं. ठीक है. अब देखो ये पूरा लॉक के अंदर चला गया. वो एक मेथड का है. ये मेथड सारे थ्रेड्स के थ्रू एक ही मेथड हम कॉल कर रहे हैं. बट हम क्या कर रहे हैं, उसको लॉक सेफ्टी इंप्लीमेंट करके इसके एग्जीक्यूट करने के लिए हमने इंप्लीमेंट किया. सो व्हाट इज द थ्रेड लॉक? थ्रेड लॉक इज एन ऑब्जेक्ट. सो ये एक ऑब्जेक्ट जब बनता है ना, वो ऑब्जेक्ट के लिए ही वो लॉक हो जाता है. मतलब ये जो नया ऑब्जेक्ट बना है वो नया ऑब्जेक्ट के लिए ही ये लॉक हो गया. और जब तक ये ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होता दूसरा ऑब्जेक्ट इसको रीड नहीं कर सकते. ये मेथड को रीड, ये मेथड के स्टेटमेंट्स को रीड भी नहीं कर सकता. सो दैट्स व्हाई इट इज अ लॉक. ओके. एंड दैट इज द ओनली डिफरेंस दैट वी हैव टेकन. एंड बाकी ये जो मेन मेथड में तो हम कुछ भी चेंजेस नहीं करने वाले हैं. लॉक मेथड जो आपका एग्जीक्यूटिव मेथड है उसके अंदर हमने इंप्लीमेंट किया. नाउ लेट अस सी द रिजल्ट. स्टार्ट किया मैंने, पहले 0 थ्रेड हुआ, 5 6 7 8 9 10 तो प्रिंट नहीं होगा. ठीक है, 9 तक प्रिंट किया. अब देखो इसका वैल्यूज कैसे प्रिंट कर रही है. स्टार्टिंग विद दिस, स्टार्टिंग में 0 है तो ये मतलब फर्स्ट थ्रेड है, ये 0 उसका नाम है. ठीक है. सो वर्कर थ्रेड 0 एंड 0 1 2 3 4 5 6 7 9. जब तक ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये ऑब्जेक्ट रिलीज नहीं करेगा दूसरे थ्रेड के लिए. देखो ये ऑब्जेक्ट रिलीज नहीं करने वाले हैं दूसरे थ्रेड के लिए जब तक वो भी रेडी हो गए एक्सेस करने के लिए. जैसे ही कंप्लीट कर लिया, वर्कर थ्रेड 2 आ गया पिक्चर में. अब ये क्यों आया 2, दैट वी डोंट नो. इसका कोई हमने प्रायोरिटी भी सेट नहीं किया, बट आ गया वो, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है. आपको लगेगा कि थ्रेड 1 आना चाहिए, अरे वो थ्रेड्स का नंबर से कोई लेना देना नहीं है. थ्रेड्स का सीक्वेंस वाइज कोई लेना देना नहीं. जैसे उसका जो फ्री थ्रेड मिलता है वो क्रिएट कर लेता है. ओके. सो इसको हमने कंप्लीट कर लिया. थ्रेड ये आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, सब सेम फैशन में एग्जीक्यूट कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई लॉक इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फीचर in which sometimes you want to do the operations in a sequential manner, and that method is passed to a thread object. Okay. So in those cases you have to provide this lock. कितने लोगों को समझ में आई? डिफरेंस आपको दोनों दिखाया मैंने. बिना लॉक का आपको कैसा आउटपुट आता है और विथ लॉक कैसे आउटपुट आता है, दोनों का हमने एक्सक्लूसिवली डेमोन्स्ट्रेट करके चेक किया. इसमें कितने लोगों को डाउट है? ये भी पहले जैसे एग्जांपल है, फॉर लूप चला रहे हैं और सब रैंडम नंबर ऑफ टाइम के लिए वो स्लिप में जाएगा. बट देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एरे ऑफ थ्रेड्स है एंड एरे ऑफ थ्रेड्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 by 1. ठीक है. एंड मोस्टली विदाउट दिस लॉक you will be getting the output like this. पूरा जंबल्ड अप है क्योंकि सारे थ्रेड्स एक ही मेथड का एक्सेस कर रहे हैं और वो कुछ भी प्रिंट कर रहा है. तो जैसे जैसे उसको कंडीशन मिलता है, मुझे एक्सेस मिल गया थ्रेड का, तो वो मुझे प्रिंट कर लेता, नहीं तो प्रिंट नहीं करेगा. तो ऐसा पूरा थ्रेड्स का भी देखो 2 3 4, उसके बाद 1 0 क्रिएट हुआ, उसके बाद 5 6 7 8. सो इन दैट वे
it is something difficult to process on the programmer side. So that's why this is the safest way. आपको systematically synchronous kind of operations देगा, but multi-threaded environment में synchronous type का operations दे रहा है, but it is a multi-threaded environment, है ना, यहाँ पे multi-threaded environment. So when you change that, you will get to see the results in a proper way. Sleep भी हो रहा है, बीच बीच में sleep भी हो रहा है, देखो ना, 3 के बाद sleep हुआ, 0 के बाद sleep हुआ, 5 के बाद sleep हुआ, है ना, तो sleep भी चल रहा है बीच बीच में. So this is how we can check with this log. अगर ये log feature समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ मॉनिटर के लिए. हेलो सर. हाँ बोलिए सर वो r डॉट नेक्स्ट टू लिखा है ना, लाइन हाँ, नंबर 28. हाँ, एक्सप्लेन. ये क्या होता है कि 2 डिजिट्स तक इसका जो मैक्सिमम रिटर्न से नॉन नेगेटिव रैंडम इंटीजर दैट इज लेस देन द स्पेसिफिक मैक्सिमम. इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 है. सो या तो 2 into 1000 है ना, 0 into 1000 या 1 into 1000. इसका 3 वैल्यूज आपको मिलेगा. इसको और थोड़ा आपको क्लैरिटी से बताना है तो ये मैं यहाँ पे 8 करता हूँ. ठीक है, अब देखो एग्जीक्यूशन थोड़ा आपको समझ में यहाँ पे जल्दी आएगा. 8 सेकंड तक आपको पॉज दिख रहा है, 3 4 पॉज दिख रहा है ना आपको हर बार. हाँ हाँ. हाँ, वो पॉज यहाँ पे रैंडमली ले रहा है, मतलब वो रैंडम है, मतलब 8 इज द मैक्सिमम. कभी 2 लेगा, कभी 8 लेगा, कभी 0 लेगा, कभी 3 भी लेगा. देखो देखो अभी स्लोली प्रिंट कर रहा है ना ये रैंडम. नेक्स्ट रैंडम कितना होना चाहिए, 2 भी, 0 से 8 तक. देखो यहाँ पे भी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे 2 सेकंड्स के लिए प्रिंट, 2 3 4 सेकंड्स के लिए, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड से ये प्रिंट हुआ. 0 2 3 4 5 6 सेकंड से प्रिंट हुआ. 0 1 2 3 4 5 6 5 तक प्रिंट हुआ. मतलब ये रैंडम वैल्यूज लेता है. रैंडम 0 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तब तक वो प्रिंट करता रहेगा. ठीक है, सो दैट इज, ये आप बिना इसके भी प्रिंट कर सकते हैं. ये एग्जांपल में इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा कुछ नहीं है. मैं अगर इसको नॉर्मल वे में प्रिंट करता हूँ, अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा हो तो इसको सिंपली मैं इसको हार्ड कोड कर देता हूँ फॉर 4 सेकेंड्स ऑफ टाइम. तो अभी क्या होगा, या तो 3 लेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 3 ले लेता हूँ. ठीक है, अभी ये हार्ड कोडेड है, रैंडम नहीं प्रिंट करेगा. हर एक वैल्यू को प्रिंट करने के लिए 4 सेकंड्स का टाइम लेता है. 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे. सो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ये के लिए वो प्रिंट करता है. अब रैंडम लेंगे तो रैंडम में क्या होता है कि 0 भी लेगा, 1 भी लेगा, 3 भी लेगा, 8 भी लेगा. ये मैक्सिमम नंबर के लिए लगता है. सो बेसिकली सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं. आपको यहाँ पे देखना ये है, आपको देखना ये है कि इसको 500 भी कर सकता है. आधे सेकंड के लिए मैं स्लिप करना चाहता हूँ, ये बहुत फास्ट प्रिंट करेगा. आधे सेकंड के अंदर प्रिंट कर रहे हैं, टक 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 टक. ठीक है, 1 सेकंड में 2 प्रिंट होता है. ये इसके लिए हम यूज करते हैं. सो गॉट इट. यस सर, गॉट इट. सो इसका सच कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. रैंडम में क्या होता है कि आपको पता चलता है कि रैंडम में थ्रेड्स को भी स्टॉप कर सकते हैं, स्लिप भी दे सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं, हो सकते हैं. बट मेन थिंग क्या है, यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ थ्रेड्स हम अरे में यूज कर रहे हैं और सबको किक स्टार्ट भी कर रहे हैं. बट until unless you are not implementing this log, you will not be able to get a proper response from the method from a given single thread. So एक थ्रेड चलाना है तो उसको completely execute करने के लिए तो log feature यूज करना पड़ेगा. When you are having multiple number of threads which are having the same access on a resource. सर इसे सिंक्रोनाइज बोल सकते हैं हम? नहीं, सिंक्रोनस नहीं है ये इतने पार्ट के लिए हम सिंक्रोनस नहीं है, सिंक्रोनस नहीं है ये. ओके लॉक करके रखे हैं, सिंक्रोनस नहीं है. लॉक करने पे क्या होता है कि दूसरा थ्रेड उसको लेने ही नहीं देता. अब ऐसा है, सपोज एग्जांपल के लिए, हाँ, अभी
अभी ये अपना कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहा है, ठीक है, वहां पे अपना मैराथन वाला भी चलता है, 5000 मीटर का, है ना। सो 10,000 मीटर का रेस है ऐसा। तो आपने कभी देखा होगा तो एक इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। सामने में एक ब्लेज पकड़ के, मतलब एक ओलंपिक्स में होता है, इसमें होता है कि नहीं पता मुझे। एक अंगार वाला एक पकड़ के एक पहला एक आदमी चलता रहता है। ओलंपिक्स का स्टार्ट ही ऐसा हुआ, जब तक Yes, वो sir. हैंड ओवर नहीं करेगा। अभी आज की डेट में क्या हो रहा है कि एक बुकलेट टाइप का वो दे देता है हाथ में, जब तक वो पीछे वाले को वो बुकलेट नहीं मिलता है तो वो स्टार्ट ही नहीं कर सकता। वो राउंड राउंड, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड में कोई तो भी एक कनेक्ट होता है, वो पार्टनर है। जब तक ये पहला वाला वो उसको हैंड रिले, ओवर नहीं करता। रिले बोल। हाँ, रिले वाला। तो पहले के टाइम में ओलंपिक्स में क्या होता है कि वो एक इसको क्या बोलते हैं एग्जैक्ट, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। वो अंगार का एक ओलंपिक्स का जो ज्योति मशाल. रहता है ना। हाँ, मशाल बोलते हैं, राइट राइट राइट, दैट्स राइट टर्म। वो मशाल को जब तक हैंड ओवर नहीं करते थे, तो तब तक वो रिले वाला अपना दौड़ना शुरू नहीं कर सकता। सो क्योंकि वो लॉक हो चुका है। ऐसा नहीं है कि थ्रेड्स मल्टीपल है, दैट मींस वहां पर रेसर्स मल्टीपल है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन वो पैरेलली रन नहीं कर सकते, बिकॉज जब तक उसको हैंड ओवर नहीं करेगा वो जो मशाल, वो दूसरे वाले को परमिशन ही नहीं मिलेगा रन करने के लिए। तो वैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया हूँ। सो वो क्यों देते हैं रेसिंग कंडीशन? रेसिंग कंडीशन मीन्स आप सेम रिसोर्स के ऊपर आप सारे थ्रेड्स को दे रहे हो। अब कोई एक ही ले सकता है ना, कोई एक ही उसको एक्सेस कर सकता है और उसको प्रोसेस कर सकता है। सो व्हेन दैट इज द कंडीशन, सो यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस काइंड ऑफ लॉ। वो मशाल भी एक काइंड ऑफ लॉ की है। तो जब तक पहला वाला कंप्लीट नहीं करेगा उसका टर्म, दूसरे को हैंड ओवर नहीं करेगा, जब तक वो दूसरे वाला लेगा नहीं तो उसको कंप्लीट करके नहीं देगा तो तीसरे वाले को नहीं मिलेगा। सो इन दैट वे वी कैन अंडरस्टैंड। वो रियल लाइफ एग्जांपल इसीलिए बताता हूँ सो दैट आपको जल्दी समझ में आता है। ओके, इट्स नॉट द सिंक्रोनस। सिंक्रोनस अलग हो गया, ये लॉक फीचर अलग हो गया, क्योंकि इसके अंदर आप एसिंक्रोनस कोड भी कॉल कर सकते हैं। इसके अंदर एसिंक्रोनस कोड कॉल कर सकते हैं ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, but it is exclusively for a single thread, that's all. So that is the importance of a lock. Still any doubts? No, sir. Got it. So ये हो गया अपना लॉक, है ना। देन वी विल सी द मॉनिटर। अब ये मॉनिटर और लॉक दोनों सेम ही है, लगभग क्या दोनों सेम ही है एक्चुअली, बट लॉक इज ए शॉर्टकट। लॉक इज ए शॉर्टकट। अब इसको देखो, मैं इसको यहीं पे मॉनिटर भी इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। इसको मैं कमेंट किया मैंने, एंड यू कैन टेक मॉनिटर फ्रॉम हियर। सो मॉनिटर इज अ क्लास एंड विच इज कमिंग फ्रॉम, ये देखो यहाँ पे system dot threading dot monitor provides a mechanism that synchronize access to objects. Objects को sequence wise one by one access करने के लिए तरीका है ये, and this is much superior to the lock. Right? दोनों का सिंटैक्स भी ऑलमोस्ट ये क्या है, अच्छा स्मॉल टी। हाँ, हेडलॉक कर लिया मैंने। इसमें आपको एज अ मेथड यूज करने की जरूरत है, थ्रेड लॉक मैंने ऐसा दे दिया, एंड लॉक का जैसा ब्रेसेस है तो इसके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। नो लेट अस सी, ये कंप्लीटली मेरे को यहाँ पे मैं कंप्लीटली इसको कट ही कर रहा हूँ, आपको अगर कोई डाउट है तो यहाँ पे, ठीक है। एंड आई एम रनिंग दिस, नाउ आल्सो वी आर गेटिंग द सेम काइंड ऑफ रेस्पॉन्स। नाउ आल्सो वी आर गेटिंग द सेम काइंड ऑफ रेस्पॉन्स, जो कि एग्जैक्टली ठीक है, स्लीप में गएगी। चेंजेस करना पड़ेगा। So monitor dot enter thread log. Then this is the
थ्रेड लॉक एरिया, मॉनिटर को रिलीज करना पड़ेगा, यही थोड़ा डिफरेंस है इसमें। इसमें एक्चुअली मॉनिटर को जब तक रिलीज नहीं करते, हाँ, तो हमको कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, हाँ, मॉनिटर डॉट एग्जिट, ये कॉल करना पड़ेगा, तभी वो रिलीज करेगा। आई फॉरगॉट दैट, है ना, तो तभी वो रिलीज करेगा। यस, अब ये 1 भी आ गया, अभी अभी लॉग जैसे ही चलेगा, अब 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। लॉग इज ए शॉर्टकट टू द मॉनिटर। मॉनिटर थोड़ा एक ऊपर के लेवल का रैपिंग काइंड ऑफ कोडिंग है वो, है ना। अगर आप मॉनिटर यूज नहीं करना चाहते तो लॉग भी यूज कर सकते हैं, लॉग इज ए शॉर्टकट। जनरली क्या है कि मॉनिटर फिर एंटर करो, है ना, पास करो, फिर मॉनिटर एग्जिट करो, फिर पास करो, इससे अच्छा लॉग यूज करो, वो वैसा है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने सिंपली किया है लॉक एंड सिंपली पास दिस थ्रेड लॉक, दैट्स ऑल। ये बहुत शॉर्टकट है ना ये, तो ऐसा भी आप यूज कर सकते हैं। सो दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डॉटनेट फ्रेमवर्क के लिए इसमें कुछ उन्होंने एक रैपर टाइप का क्लास बना के वो यूज कर रहे हैं, एंड दिस इज ए कीवर्ड स्पेसिफिकली गिवन फॉर द दिस करली ब्रेसेस काइंड ऑफ इसके लिए। मॉनिटर डॉट थ्रेड लॉक करेंगे तो आपको इसकी करने की जरूरत भी नहीं है ना, इसको करने की भी जरूरत नहीं, ऐसा है प्रॉब्लम। दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी तो सर ने थियोरेटिकली तो समझा ही होगा मॉनिटर क्या है, लॉक क्या है। क्या डिफरेंस बताया लॉक में मॉनिटर में? ऐसा जहां तक मेरा नॉलेज है दोनों में जब बहुत ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है। दिस इज ए शॉर्टकट टू दिस मॉनिटर। इसके अलावा कुछ बताया कि सर ने थियोरेटिकली? यस, अच्छा, पता नहीं, बताए तो सर ने बताया या? मॉनिटर में ऐसा है क्या, ये जैसे कि सिंक्रोनाइज आपने बोला कि सीक्वेंस वाइज जो भी थ्रेड है, अभी मेन थ्रेड है तो मेन थ्रेड ही चलेगा, उसके बाद जो भी हाँ, फर्स्ट सही वाला सही, थ्रेड होगा। कॉन्सेप्ट सेम ही है, ये इसके ऊपर एक रैपर काइंड ऑफ उन्होंने क्लास बनाया है। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं। बट लॉक में ऐसा नहीं है, रैंडमली कौन सा भी एक थ्रेड होगा बट वो सीक्वेंस में होगा, वो खत्म होने के बाद दूसरा कौन सा भी होगा वो भी खत्म होने तक तीसरा चालू होगा, ऐसा होगा ना? चेक कर लेते हैं, अभी मैं दोनों भी दे दिए। अच्छा, आपका कहना है कि थ्रेड 0 के बाद थ्रेड 1, उसके बाद ऐसा हाँ, ऐसा मॉनिटर में होगा। हो और सकता है। लॉक में सिर्फ होगा बट 0 का होने के बाद कौन सा भी रैंडमली होगा बट वो पूरा होगा। वो एक दो बार चेक करने के बाद अपने को समझ में आएगा। मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, मॉनिटर डॉट एंटर कर रहा हूँ। इसका स्पीड अप करने के लिए मैं इसको स्लीप निकाल देता हूँ। ठीक है, स्लीप निकालने पे क्या होगा, अपना बहुत फास्ट एग्जीक्यूट होगा। अभी देखते हैं इसका आउटपुट। 0 1 3 2, है ना। अब ये मैं मॉनिटर यूज कर रहा हूँ यहाँ पर भी तो 3 2 हो रहा है ना। वो नहीं है, वो दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है। नहीं तो ये 1 2 आना चाहिए, मतलब 0 1 के बाद 2 आना चाहिए, उसके बाद 3 आना चाहिए। वो इंटरनली, एक्चुअली इंटरनली एक ही जैसा वो प्रोसेस करेगा, बट देर विल बी अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन द मॉनिटर एंड लॉक। अभी तो एग्जैक्टली तो मुझे भी स्ट्राइक नहीं हो रहा, हो सकता है कुछ होगा, बट एज फार एज आई रिमेम्बर दिस इज ए शॉर्टकट, लॉक इज ए शॉर्टकट टू दिस मॉनिटर डॉट एंटर, एक शॉर्टकट नोटेशन है। अल्टीमेटली लॉक का भी इम्प्लीमेंटेशन है ना, इसी के अंदर मैंने किया होगा। So, जहां तक मुझे लगता है वो वैसे ही है। गो टू डेफिनेशन करके देखेंगे। गो टू डेफिनेशन, अच्छा ये रन हो रहा है। डेफिनेशन cannot navigate the symbol under the carriage. अच्छा, ये करने ही नहीं दे रही। आप इसको फाइंड आउट करो थियोरेटिकली व्हाट इज द डिफरेंस, ओके। बट अदरवाइज प्रोग्रामेटिकली तो आप भी यहाँ पे देख लिया है। आप चाहे इसको यूज करो चाहे इसको यूज करो, रिजल्ट तो आपको सेम ही आने वाला है। So programmatically, I can guarantee you that there is no such difference between these two kind of implementation. That depends on the programmer choice. But mostly इसको ही ज्यादा यूज करते हुए मैंने देखा है। मॉनिटर डॉट एंटर भी है, बट वो एक रैपर काइंड ऑफ क्लास है ना, तो उसको भी आप यूज करके देख सकते हो।
even though there is a minute difference, that doesn't affect your application majorly. So that's what I can guarantee. ठीक है, तो ये हो गया अपना log and monitor. Then comes with कितना बज गया, 1 बज गया, अभी आधे घंटे में थ्रेड इसका टास्क रिलेटेड एग्जांपल कंप्लीट करेंगे. ये async वाला तो async के await async के साथ await यूज करना पड़ेगा, वो भी देख सकते हैं पैरेलली, but task is one of the important concept which we will try to see and understand. Okay, so for this task के लिए I will create a task first of all. इसको मैंने कॉपी किया था शायद नहीं, ये क्या है, so let us remove everything. Okay, so again computer basics, अभी सब कुछ डिलीट कर लिया मैंने. Now ये थियरी में तो मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए टाइम नहीं बचेगा फिर. ठीक है, सो यूजिंग द टास्क पैरेलल लाइब्रेरी, ये सब तो सर ने समझाया होगा अच्छे से. सो टास्क रिलेटेड एग्जांपल अपने लैब में आ रहा है तो इसको कंप्लीट करना पड़ेगा. सो व्हाट इज अ टास्क? टास्क इज नथिंग बट ये हायर लेवल कॉन्सेप्ट देन द थ्रेड, है ना. अब टास्क मतलब एक कंप्लीट एक वर्क है, टास्क मतलब एक कंप्लीट वर्क है. एक वर्क के अंदर आप थ्रेड्स आप इंस्टेंशिएट कर सकते हो, वर्क भी कर सकते हो. So thread class is used for creating and manipulating a thread in Windows, but task represents some asynchronous operations as part of the task parallel library. ये जो task parallel library करके इन्होंने .NET framework मेरे ख्याल से 3.5 के बाद इन्होंने दिया है ना. तो ये asynchronous operations जहाँ पे यूज करते हैं उसको task parallel मतलब वही है ना. देखो ये parallel मतलब क्या है, parallel processing. So जहाँ पे आपको asynchronous operations, ये एसिंक्रोनस ऑपरेशंस, ठीक है. सो जहां पे आपको पैरेलल प्रोसेसिंग करना है तो आप थ्रेड के बदले में इसको यूज करोगे. सो द टास्क कैन रिटर्न ए रिजल्ट, देयर इज नो डायरेक्ट मैकेनिज्म टू रिटर्न द रिजल्ट फ्रॉम ए थ्रेड. सो थ्रेड के अच्छा अभी तो थ्रेड का हमने एग्जांपल रिमूव कर दिया. डायरेक्टली थ्रेड के थ्रू हम आउटपुट नहीं निकाल, रिटर्न वैल्यू नहीं ले सकते, बट टास्क के थ्रू रिटर्न वैल्यूज हम ले सकते हैं. नॉट ओनली दैट, टास्क क्या करता है, टास्क कैंसिलेशन भी सपोर्ट करता है और टास्क रिज्यूम को भी सपोर्ट करता है. सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टास्क एंड द थ्रेड. सो बेसिकली दिस इज बिगर देन दिस, आप ऐसा देख सकते हो. सो ये हायर लेवल कॉन्सेप्ट है देन द थ्रेड, क्योंकि इसमें रिटर्न वैल्यूज नहीं मिलेगा, इसमें आपको रिटर्न वैल्यूज मिलेगा, है ना. सो ए टास्क कैन हैव मल्टीपल प्रोसेसेस हैपनिंग एट द सेम टाइम, but threads can have only one task running at a time. तो ये भी एक और डिफरेंस है. तो ऐसा बहुत डिफरेंसेस है इसमें. मल्टीपल पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, पैरेलल थ्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं पैरेलल, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं है ना. तो एक एक थ्रेड को आपको इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा, वो एक एक थ्रेड को आपको असाइन करना पड़ेगा एक एक मेथड को, बट इसमें नहीं है. एक ही टास्क के थ्रू आप मल्टीपल मेथड्स को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं. वो बेसिकली ये सारे एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझ में आ गया कि ये higher level of concept than the thread. Now let us see the implementation. अब implementation इसका बहुत सिंपल है, ठीक है. अब सेम एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, static void print करके मैं एक मेथड लूंगा जिसके अंदर ये बहुत सिंपल है ना एग्जांपल, इसलिए मैं उसको दे रहा हूँ, ठीक है. So console dot write line क्या बोलेंगे, वैल्यू इज i, ठीक है. एंड जैसे ही कंप्लीट हो जाता है 1 2 3 4 5, मैं इसको प्रिंट करूंगा चाइल्ड थ्रेड इज कंप्लीटेड, ऐसा कुछ एक मैसेज में प्रिंट करूंगा. ओके, कंप्लीटेड करके एक मैसेज में प्रिंट करूंगा. क्या बोलूं, 5 वैल्यू, ओहो
दिस हैव टू कीप हियर। तो मेथड के बाहर चला गया तो वो एरर दे रहा है, ठीक है। देन सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अभी अपने को टास्क लेना है ना, तो टास्क का प्रयोग है तो आई विल डिक्लेयर टास्क। टास्क तो आ ही नहीं रहा। टास्क क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज ये नेम स्पेस हमने लिया ही नहीं है। यूजिंग सिस्टम डॉट ट्रेडिंग डॉट, ये देखो यहाँ पे टास्क आ गया, तो ये नेम स्पेस के अंदर टास्क का डेफिनेशन दिया है। नाउ इट इज फाइन, नाउ दिस इज फाइन। आप जैसे टास्क को डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे टास्क दिख रहा है। टास्क कैन बी ऑफ जेनरिक, टास्क कैन बी ऑफ नॉन जेनरिक ऑल्सो, ओके। So task T1 is equal to task dot run, टास्क को रन करेंगे और ये मैं एक लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू, ये लैम्डा एक्सप्रेशन है, एनोनिमस मेथड या लैम्डा एक्सप्रेशन है, इसमें मैं मेथड लिखो, ऑटोमेटिकली वो कंप्लीट ही कर रहा है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू भी दे सकते हैं या तो नॉर्मली भी दे सकते हैं, बट दिस इज द शॉर्टेस्ट वे। सिंगल लाइन में आप डिक्लेयर भी कर रहे हो, सिंगल लाइन में आप अटैच भी कर रहे हो, एंड सिंगल लाइन में आप मेथड को कॉल भी कर रहे हो, सब कुछ एक ही लाइन के अंदर हो रहा है। तो दिस इज योर लैम्डा एक्सप्रेशन, ओके। सो ये प्रिंट क्या है? प्रिंट ये मेथड है, टास्क के साथ अटैच किया हमने, दिस इज एन एनोनिमस मेथड, है ना। अब इसके एग्जीक्यूट करके देखो, 0 1 2 3 4 चाइल्ड थ्रेड इज कंप्लीटेड, दैट्स ऑल। सो थ्रेड से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। पहले थ्रेड को बनाओ, फिर इसको अटैच करो, फिर इसको कॉल करो, फिर स्टार्ट करो, टी डॉट स्टार्ट। उससे अच्छा ये देखो ना कितना नीट एंड क्लीन है। एंड नॉट ओनली दैट, ये इतना ही नहीं है, ये इसके अंदर भी ये होने के बाद मेन मेथड में टास्क करने के बाद T1 डॉट वेट, ठीक है, कंसोल डॉट रीड लाइन, मेन थ्रेड कंप्लीटेड, और इससे क्या होगा? सॉरी, ये राइट लाइन है ना, ये राइट लाइन है, और उसके बाद कंसोल डॉट रीड लाइन, ये तो है ही है, यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये T1 को वेट करा रहे हैं। पहले के एग्जांपल में सिंपली हमने रन किया, देखो पहले के एग्जांपल में हमने यहाँ तक ही लिया है, ये सिंपली रन करेगा और अपना जो भी वैल्यू से वो पहले के एग्जांपल ये रन किया हमने, वैल्यूज को प्रिंट किया, खत्म हो गया, ठीक है। अब इसमें वेट वाला डालना चाहते हैं, अब ये वेट का कोडिंग मैंने ओपन किया, वेट करने के बाद अभी रन कर रहा हूँ, रन करने के बाद देखो अभी T1 डॉट वेट, मेरे ख्याल से T1 को वेट, यहाँ पे तो T1 ले ही नहीं सकते, हाँ अभी दोनों वैल्यूज प्रिंट हो रहे हैं ना। देखो चाइल्ड थ्रेड इज कंप्लीटेड यहाँ पे आ गया। नाउ T1 वेट किया थोड़ी देर, उसके बाद मेन थ्रेड कंप्लीटेड भी प्रिंट कर रहा है। एंड वेट के लिए मुझे लगता है एक कैंसिलेशन मिली सेकेंड्स का टाइम दे देता है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर 6000 का वैल्यू देखूँ, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। ये तो इंस्टेंटली प्रिंट कर रहा है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग चल रहा है और वेट करने का भी वो दे ही नहीं रहा है। Every time it is giving the same result. No, ये wait method कॉल ही नहीं कर रहा, waits for the task to complete execution within a specified number of milliseconds.
ट्रू इफ द टास्क कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन विद इन द, अच्छा ये बुलियन रिटर्न करता है, ओके ओके ओके, इसको मुझे कैप्चर करना पड़ेगा, bool val is equal to this, okay, so इसको मुझे val को चेक करना पड़ेगा, ऐसा आपको प्रोग्रामिंग एक्सटेंड करना पड़ेगा. So let us forget about this. Let us forget about this. अगर वो स्टॉप करता है तो उसका ट्रू और फॉल्स वैल्यू देगा, अकॉर्डिंगली आप कंडीशन चेक करके आप उसको कैंसिल करना है, कंटिन्यू करना है, वो सब आपका फर्दर प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं. बट मोर और लेस आप टास्क को आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर जिनको भी ये नहीं समझा, ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है कि डेलीगेट के थ्रू, जो नॉर्मली अपने को आदत है, टास्क T1 इज इक्वल टू न्यू टास्क, ये अपना जो प्रिंट का जो मेथड है हम प्रिंट सेंड करेंगे, है ना, एंड उसके बाद T1 को स्टार्ट करेंगे, ये भी चलेगा. ये क्या है, टास्क इज अ डेलीगेट, यू कैन सी दैट इनिशियलाइजेशन न्यू टास्क, ये भी दोनों में सेम ही रिजल्ट आएगा आपको. देखो दोनों में सेम ही रिजल्ट आ रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेन थ्रेड पहले ही कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद चाइल्ड थ्रेड कंप्लीट होगा, ठीक है. तो ऐसा भी कर सकते हो एज ए डेलीगेट फॉर्मेट, या ऐसा भी कर सकते हैं एज ए लैम्डा फॉर्मेट, ठीक है. सो एज सच कॉलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, बट दिस इज मोर प्रेफर्ड लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू. या अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो ये ऐसा भी कॉल कर सकते हैं, बट टेक एनी वन. So this is about the importance of the task. So the main thread execution will wait until the task object completes its execution. जब तक ये task complete नहीं करता ना, तो ये तब तक main वाला अपना execution stop करके रखता है. हाँ, अभी इसका ये देखो डिफरेंस दिखा देता हूँ. मेन थ्रेड कंप्लीटेड फर्स्ट प्रिंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कॉल होने के बाद ये थोड़ा टाइम लग रहा है, बट बाय द टाइम पैरेलल है ना ये टास्क है, सो दैट्स व्हाई मेन थ्रेड कंप्लीटेड को ये प्रिंट कर लिया. उसके बाद इसका वैल्यूज प्रिंट कर रहा है, उसके वैल्यूज के बाद चाइल्ड थ्रेड कंप्लीटेड का मैसेज आ रहा है. अब एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पर T1 को वेट कराएंगे लाइक दिस. नाउ यू कैन सी यहाँ पे मेन थ्रेड लास्ट में कॉल हुआ है, क्योंकि जब तक ये टास्क कंप्लीट नहीं होता तब तक ये मेन थ्रेड का मेथड को वो वेटिंग मोड में रखा है. सो दैट्स व्हाई मेन मेथड का जो फंक्शन है ना लास्ट में कॉल है. सो इन दैट में आपको जो ऑर्डर देना है, जो भी करना है, वेट करके, है ना, ये बहुत सारे मेथड सपोर्ट करता है. T1 डॉट स्टार्ट वेट स्टेटस जैसे ले सकते हो, अवेट एसिंक्रोनस ऑपरेशंस कर सकते हो, है ना, एंड कीज कैंसिल चेक कर सकते हो, कंप्लीट है क्या स्टेटस चेक कर सकते हो, ये सब कुछ कर सकते हैं फ्रॉम दिस टास्क, which is not possible in the thread. ठीक है, तो ये हो गया टास्क के बारे में, टास्क पैरेलल लाइब्रेरी के बारे में, ठीक है. और भी 2-3 एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं, अवेट एसिंक का सब चेक कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, बट अभी उसका एग्जाम्पल लेंगे तो नियरली आधा घंटा लगेगा. तो इतना समझ में आ गया क्या, टास्क वाला तो समझ में आ गया ये T1 को कैसे लेते हैं एंड उसको रन, ये बाय डिफॉल्ट मेथड है. ये use the specified work, ये देखो यहाँ पे use the specified work to run on the thread pool and returns a task object that represents that work. ये ऐसा उसका implementation. So any doubts from this? और भी बड़े-बड़े एग्जांपल्स ले सकते हैं. टास्क पैरेलल लाइब्रेरी काफी बड़ा है ना. टास्क पैरेलल लाइब्रेरी के ऊपर आप ये लाइक व्हाट यू कैन सी एज await, commented इसमें लिखता हूँ await async, है ना. Then you can cancel the task also by taking the cancellation token source करके एक मेथड है, वो क्लास है. एक क्लास के थ्रू आप टास्क को रन भी कर सकते हो, उसको कैंसिल भी कर सकते हो. बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है ये लाइब्रेरी, जो कि थ्रेड क्लास देता ही नहीं. मतलब ये थ्रेड को स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, बीच में आप कैंसिल नहीं कर सकते.
कैंसिलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम स्टॉपिंग. स्टॉप कब होता है? पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद स्टॉप होता है. कैंसिल बीच में जैसे स्टार्ट किया मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ, अबॉर्ट कर सकता हूँ, रिवोक रिज्यूम कर सकता हूँ. ये सारे के सारे थोड़ा इतना प्रोफेशनल नहीं है थ्रेड्स. सो दैट्स व्हाई टास्क पैरेलल लाइब्रेरी में, एंड दैट इज मोरली एज इट्स अ पैरेलल, you can come to know that is dealing with the await and async. पैरेलल प्रोग्रामिंग में ज्यादा यूज होता है वो. तो ये सारे एग्जांपल्स, बड़े बड़े एग्जांपल्स थोड़ा बना के चेक करना पड़ेगा. तो आज के लिए तो हम नहीं कर सकते, ठीक है. सो आज का जितना भी अपने को समझ में आ गया तो यू आर गुड टू गो फॉर द थ्रेडिंग. सो थ्रेडिंग एक बार समझ में आ जाता है तो काफी इजी पड़ता है. बट एवरी नाउ एंड देन एवरी प्रोजेक्ट के लिए आपको थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना ही है मैंडेटरी, ऐसा जरूरी नहीं है. बिना थ्रेडिंग का भी कंप्लीट प्रोजेक्ट्स भी आप चला सकते हैं. दैट डिपेंड्स ऑन योर नेचर ऑफ योर प्रोजेक्ट. द कॉन्सेप्ट आपको पता है करके यूज करना ऐसा नहीं है. वो कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है, बट ये भी पता होना जरूरी है कि कहाँ पे इसको एक्चुअली यूज करना है. ये दोनों डिफरेंट है कंप्लीटली. पता है इसीलिए हम जबरदस्ती थ्रेडिंग यूज करेंगे, इट विल गिव नो मोर एडवांटेज टू यू. बट जहाँ पे यूज होना चाहिए वहां पे आप यूज नहीं कर रहे हो, तो दैट विल गिव यू द परफॉर्मेंस पेनल्टी. सो सोच समझ के थोड़ा थ्रेडिंग का टेक्स्ट बुक में रेफर करो, कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, व्हाट इज द बेस्ट वे टू यूज दैट. क्योंकि बहुत ज्यादा थ्रेडिंग यूज करेंगे ना, आपका परफॉर्मेंस भी डिग्रेड हो जाता है. सो इट्स ए डबल एज स्वॉर्ड. इसको अच्छे तरीके से यूज करो. डबल एज स्वॉर्ड मतलब आप उसके थ्रू सब्जी काटना तो सब्जी काटो, है ना. कुछ चीजें फल काटना है तो काट, बट उसका रिपरकशंस भी अलग से रहे. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक कॉशियसली थ्रेडिंग. इफ इट इज नीडेड देन यू कैन टेक फॉर योर प्रोजेक्ट, बट फॉर प्रैक्टिकल्स आप ट्राई कर सकते हो. प्रैक्टिकल्स के लिए ट्राई करो, प्रोजेक्ट्स की नहीं बात कर रहे हैं. सो एनी मोर डाउट्स ऑन दिस थ्रेडिंग? सो टास्क पैरेलल के इंट्रोडक्टरी मैंने करवा दिया. टेक्स्ट बुक में भी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, उसके थ्रू आप गो थ्रू कर सकते हो, है ना. ये सारे के सारे फीचर्स आप चेक कर सकते हो. बहुत इजी एग्जांपल्स है, बट थोड़ा बड़ा कोडिंग करना पड़ेगा. कैंसिल टोकन सोर्स से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इसको यूज करते हैं. ओके, सो if there are no doubts, then we can conclude the session, and from tomorrow we will start with this ASP.NET because अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है. 1 2 3 4 5 क्लासेस के अंदर रैप भी करना है. इतने सारे काफी सारे डिफरेंट एमवीसी का कॉन्सेप्ट्स है. आपका थ्योरी स्टार्ट हो चुका है, so I am waiting for your theory. So आज भी आपका सेकंड क्लास हो चुका है, कल आपका थर्ड क्लास भी हो जाएगा, so that we can start with the main things from this ASP.NET MVC. ठीक है. So anything that you want to ask? Okay, so basically tasks are nothing but the upper level implementation of the thread based concepts. So task पैरेलल लाइब्रेरी उन्होंने अलग से बनाया है एसिंक्रोनस ऑपरेशंस के लिए. उसको आप रन करके चेक कर सकते हैं, और इसमें सारे सपोर्टेड मेथड्स, वेट सपोर्टेड है वो हमने चेक कर लिया है. देन async, await, then task token, cancellation token source. So these are some of the important things that we can do from the task. So I think nobody is having doubts in this. Okay, lock is the shortcut. Yes, I have said that. We need to enter with try and finally. Lock is the shortcut and option for the PC process. Okay, great. Okay. So I think we can conclude this session for today. Let us conclude. Thank you, sir. sir.